Let's start with the types of combustion. सारी कर ली थी हमने. We were discussing the types of combustion. अननोन है. In which we discussed about कर दो अम्मा, मेरे को नहीं है. rapid combustion, spontaneous combustion. तो spontaneous की मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी. Spontaneous combustion में आ जाते हैं forest fires, white phosphorus, okay, dry leaves when they get too much heat from the sun, okay, so by which they will start burning itself, okay. Another reasons can be coal dust in the coal mines. This is also an example of the spontaneous combustion where it can lead to the fires in the coal mines. ठीक है, तो कोल माइंस में भी फायर कॉजिंग एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. जो कोल डस्ट है, लाइटर डस्ट पार्टिकल्स आल्सो, व्हेन दे गेट द सफिशिएंट इग्निशन टेम्परेचर दे स्टार्ट बर्निंग एंड दिस लीड टू द fires in the coal mines. Okay, so coming to the next type is explosive combustion, where it can be seen in the form of an explosion. ये एक explosion की form में होता है in which heat, light and sound energy is reduced. Okay, gases they also involve sound energy and gases. Okay, so explosion की तरह होता है, जैसे for example explosion or burning of crackers, bombs. ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, एक्सप्लोसिव कंबशंस में आ जाते हैं. ज्यादा बोल रहा है तो ठीक है बेटा. They also comes under the category of explosive combustion. Now next are the products of combustion. Next are the products of combustion. करें next? So with the burning of any substance, or if any substance undergoes the combustion process, then two types of substances they are formed as the byproducts. ठीक है, दो तरह के byproducts हमारे पास आ सकते हैं. Depend on the type of the combustion that it is undergoing. If the substance is undergoing complete combustion, complete combustion कब होती है? It occurs in the excess of oxygen. जब ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस केस में कौन सी कंबशन होती है? कंप्लीट कंबशन. ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड heat, light or sound, any form of energy can be involved. ठीक है, okay.
So carbon dioxide gas is the byproduct in this case along with water and energy. दूर तक क्यों नहीं आती हैं? तो जितना कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा वहीं तक की बर्निंग होगी ना. हाँ, तो क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है, आती तो है. ऐसे अगर आप पास में बैठे हो तो आपको एनर्जी मिलेगी नहीं उससे, हीट. तो जितना जितना एरिया होगा लोकलाइज उसमें मिलेगी ना आपको. द सेकेंड वन इज the second is incomplete combustion. Now what is the meaning of incomplete? That means the substance, it don't get the proper supply of oxygen, or you can say insufficient oxygen. जो कैंडल के किस पार्ट में होती है? मिडल पार्ट में. मिडल पार्ट में होती है, ठीक है. मिडल पार्ट इट बर्न्स विद द insufficient oxygen. That is the zone of incomplete combustion. ठीक है. और इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं डेट आर carbon monoxide, water and energy. Okay, and combustion in this case can be dangerous because it leads to the formation of carbon monoxide, and carbon monoxide on reaction with that forms carboxy. अब ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है? जो ऑक्सीजन है उसको हेमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होने देता है. ओके, so if oxygen is not actually attached with the hemoglobin, then the supply of the oxygen in your body, it will decrease ultimately. ओके, तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होती जाएगी एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी डेथ. इसीलिए कहते हैं जब भी आपका रूम बंद है, ठीक है, उस केस में आपने कोई बर्निंग नहीं करनी है. Whenever the room is closed, no burning process should be there. Why should not be there? Because burning it always leads to the formation of carbon dioxide और carbon monoxide. तो आपको सफोकेशन हो जाएगी. अगर रूम बंद होगा, अगर रूम बंद होगा तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, यू आर नॉट गिविंग देम एनी वे आउट. बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दे रहे हो आप उसको. दे विल रिमेन इन योर रूम. ठीक है, तो अगर रूम बंद होगा यू विल गेट सफोकेटेड. तो अल्टीमेटली आपको रेस्पायर करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी. नाउ नेक्स्ट राइट डाउन. What is ignition temperature? The minimum temperature. Like we discussed one activity for an ignition temperature, जिसमें हमने क्या किया था? We took a dry filter paper and second filter paper I took which was actually a wet. ठीक है, तो उसकी इनर साइड्स जो थी वो क्या थी? वेट थी. When I heated this dry filter paper, जब मैं उसको कैंडल के ऊपर लेके आई तो ये easily burn कर गया. That showing its ignition temperature is low. What is ignition temperature actually? The minimum temperature. सबसे कम टेम्परेचर जो हम उस सब्सटेंस को दे सकते हैं ताकि हम उसको क्या कर सके? बर्न करवा सके. So it is the minimum temperature at which the substance that is called as ignition temperature. ठीक है,
जो चीजें इंस्टेंटली फायर कैच कर लेती हैं या जो सब्सटेंसेस which undergo rapid combustion that shows they are having low ignition temperature. उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए वो जल्दी जो है वो क्या कैच कर लेती हैं, फायर. ठीक है. बट अगर यही मैंने एक वेट फिल्टर पेपर लिया हुआ है, ओके, इफ द फिल्टर पेपर इज वेट, नाउ व्हाट विल हैपन इज, सो जितनी भी आप उसको हीट सप्लाई करते जाओगे, फर्स्टली इट विल नॉट बर्न. पहली बात, ये फिल्टर पेपर बर्न कर गया था, ये फिल्टर पेपर फर्स्टली इट विल नॉट बर्न, इट विल नॉट कैच फायर. व्हाई? क्योंकि वाटर के साथ जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया. ओके, नाउ इट इज हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर. उसको इग्नाइट करने का, ठीक है, उसको बर्न करने का जो टेम्परेचर है, अब वो वाटर के साथ क्या हो गया है, दैट गेट्स इंक्रीज्ड. दैट्स व्हाई द सब्सटेंस इट विल नॉट कैच फायर. तो ये एक्टिविटी आप पेपर कप्स में भी कर सकते हो, जहां पर आपने पेपर कप को रखना है, ठीक है, बर्नर के ऊपर. आइदर यू कैन यूज हॉट प्लेट्स ऑल्सो. ठीक है, आपने उस पेपर कप को उसके ऊपर रखोगे, उसमें पानी लोगे, तो यू विल ऑब्जर्व कि जो पेपर है वो तो बर्न ही नहीं हो रहा. ठीक है, चाहे आपने पेपर को डायरेक्ट हीट दे रहे हैं उसको, बट आप ये देखोगे कि वो पेपर जो है वो हीट नहीं हो रहा, वो बर्न नहीं हो रहा है. इंस्टेड ऑफ बर्निंग, जो उसके बीच में पानी है, the water that is actually present in the paper cup, that will start boiling. ठीक है, तो वो जो उसके अंदर पानी है वो अल्टीमेटली हीट ले लेके क्या करना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू. Now this activity shows that the ignition temperature of different substances, they are different. ठीक है बेटा. अब यही अगर हम एक वुड का लॉग लें, इफ वी टेक अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है, और आपने एक छोटी सी वुड की शेविंग ले लो, पतली सी वुड ले लो, कि उसको जल्दी आग लगेगी, शेविंग ऑफ वुड, जो बहुत पतली सी स्टिक है उसको जल्दी आग लग जाएगी. व्हाई? बिकॉज दैट इज हैविंग द लो इग्निशन टेम्परेचर. जो लॉग है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो इजीली फायर कैच नहीं करेगा. अब समटाइम्स when you add kerosene oil on that log of wood, अब kerosene oil का तो इग्निशन टेम्परेचर कम है, kerosene oil का इग्निशन टेम्परेचर कम है, इट इज हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, तो उसने उस लॉग को इजीली क्या कर देना है, बर्न कर देना. Okay, so by adding some of the substances or by adding many of the things, we can increase or decrease the ignition temperature of that substance. ठीक है, तो हम ignition temperature को change कर सकते हैं. Next, write down. Ignition temperature सबसे ज्यादा किसका होगा out of wood, kerosene and petrol? वुड, कैरोसिन एंड पेट्रोल. वुड का सबसे ज्यादा होगा, वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा ना. फिर कैरोसिन का, कैरोसिन ऑयल का फिर ज्यादा होगा, एंड सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर इसका होगा पेट्रोल. ठीक है, तो पेट्रोल जो है so petrol is highly inflammable. So if I write in this order, in the which order में लिख रही हूँ मैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे ज्यादा वुड का है, फिर कैरोसिन का है, और फिर पेट्रोल. राइट, so if ignition temperature is written in this order, then petrol is highly inflammable. Now what do you mean by inflammable substances? Arish? ठीक है, what do you mean by inflammable substances?
The substances that catch fire. जो नहीं करते हैं, तो जो भी आपने नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस लिखे हैं, दे विल बी फ्लेमेबल. फिर अब जैसे इनकम्बस्टिबल था, चलो ठीक है. सो सब्सटेंसेस दैट कैच फायर वेरी इजीली. क्या नहीं समझ आ रहा? वुड का सबसे ज्यादा है. एरो किस तरफ है? हाँ, तो वुड नहीं बर्न होती है ना जल्दी. उसके ऊपर कैरोसिन ऑयल डालना पड़ता है या कुछ और ऐड करना होता है. हाँ, गीली वुड को सुखाओ पहले. हाँ, तो कैरोसिन नहीं करेगा, पेट्रोल करेगा पहले. रिकॉर्डिंग चल रही है. हाँ जी, ठीक है हरमन. अब ओके. So inflammable substances are those substances that catch fire very easily due to their low ignition temperature. तो क्योंकि उनका ignition temperature कम होता है, इसलिए वो जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं. Now next write down. Next write down fire extinguishers. Next write down fire extinguishers. क्या हो गया बेटा? So we have studied that the process of combustion, it requires three important conditions. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. किसी भी चीज की हीटिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो इन तीन चीजों के कारण वो जो बर्निंग प्रोसेस है, इट इज गोइंग ऑन. ठीक है. अब मैंने उस बर्निंग प्रोसेस को रोकना है. दैट मीन्स आई वांट टू एक्सटिंग्विश द फायर. ठीक है. अब क्या तीन पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर चला सकते हैं? either I can cut the supply of oxygen, either by cutting the temperature, either by increasing ignition temperature, either by removing combustible substance. अब इसमें से दो चीजें हम कर सकते हैं और तीसरी चीज हम नहीं कर सकते. हम ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर सकते हैं. कर सकते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा के पानी ऐड कर देते हो आप. ठीक है. या यू ऐड एनी अदर सब्सटेंस, जैसे ब्लैंकेट है, सैंड है, ब्लैंकेट. ठीक है. ब्लैंकेट से भी आप जब फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हो, एट दैट पॉइंट आल्सो यू आर इंक्रीजिंग द इग्निशन टेम्परेचर. व्हाट वी कांट डू इज
हम कंबस्टेबल सब्सटेंस को रिमूव नहीं करवा सकते। अब एक बिल्डिंग को आग लगी हुई है तो हम ये थोड़ा ना करेंगे कि वो बिल्डिंग को हटा सकते हैं कहीं पे। ओके, सो दिस थिंग वी कांट डू आउट ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ द कंबशन प्रोसेस। ठीक है, अब सबसे पहले मेथड डिस्कस करते हैं, कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। So here you can use blankets यूज कर सकते हैं हम, सैंड यूज कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज। तो अगर हम ये चीजें यूज करेंगे तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर सकते हैं और जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्लैंकेट्स हैं, इतनी ज्यादा ब्लैंकेट्स कहाँ से लाएंगे, पूरी की पूरी बिल्डिंग को आग लगी हुई है तो। सेम इज विद द सैंड। ठीक है, सैंड भी बहुत ज्यादा हमें चाहिए, तो ये जो है वो बहुत स्मॉल फायर्स के लिए यूज कर सकते हैं। वाटर, नाउ यू आर हैविंग द वाटर। ठीक है, फायर ब्रिगेड्स होती हैं आपके पास, वो जो है वो पाइप्स में जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे हाई प्रेशर पे जो वाटर है वो क्या करते हैं, डालते हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर। नाउ अगेन द वाटर एज फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज हैविंग वन लिमिटेशन। So water as fire extinguisher, it is having one disadvantage, and that disadvantage is कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग में या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हैं जहां पर, वहां पर हम वाटर एज फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते रुद्रांश? रुद्रांश सबका नाम फिर रुद्रांश बोलिए। वाटर को हम एज फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं यूज कर सकते बेटा जहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं? वाटर इज water is a good conductor of electricity. Okay, so that means it will allow electric current to pass through it. और जिस पर्सन ने उस वाटर की पाइप्स को होल्ड किया होगा तो उसको क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इन दैट केस वी कांट यूज वाटर। तो उन केसेस में हम क्या यूज करते हैं? So we will be using carbon dioxide as fire extinguishers. Okay, now which property of carbon dioxide is used here? Very good. So यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज heavier than ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस को एक तरह से ब्लैंकेट की तरह क्या कर लेती है, कवर कर लेती है उसके ऊपर। ओके, सो बीइंग हैवियर इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट। यस मैम।